ಸುರುವಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೊಯ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಿಯರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಡಲ ಸಂಘ ಡೊಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಜೊಡ್ಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಲಿಕ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ದೊಡ್ಡದು CPR ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಒಬ್ಬ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪಿನ್ನೀರಿಗೆ ಯಾನು ಎರಡು ಕೈ ಜೋಡಾದು ತಲೆ ತಗ್ಗಾದು ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಅಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು ಎದುರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ವರೂಪಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಿನ ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮೋಕೆಡೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪುರಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬೆಂದೇರಾದ ವೈದಿನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಬ್ಬಿಲಿದ ಪರವಾದ ಪೀಠರಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಬ್ಬಿಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ತೇರನ್ನು ಓಡುವ ಗುರುಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವುದಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಆನಂದ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕರ್ ಮೇರೆಂದ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ VM ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಪದ ಗುರುಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂದಿನ ಯೋಗಿನಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ತಂಡದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿನ ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯುವ ಮಾನ ini ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಂಕರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಇಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ತೆಗಿಪ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಂಟವರ್ ಪಡೆದು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಏಜೆಂಟ್ ಚೂರು ಇಬ್ಬರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಸ್ತು ದೂರ ಬೈದರೆ ಟೈಮ್ ಬೈದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಯಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರೆಯ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಮಾನವೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋದ್ಯಾನ ಕೇಳೋದು and ये कार्ड है मुझे आधे घंटे कार्ड है so first of all congratulations to this is our I think third time like second or third time that we are meeting thank you very much congratulations for organizing this event successfully every year and as an ICU chief in the Sardo Chembur at least in a pura 15 hospital in the ICU full for now dengue malaria leptospirosis namak at least Chembur kerosati mujila ottiga mujhe patient so blood donation all blood bank survey of Chembur pura blood bank se kali undu that blood donation corridor ke andar see for example itte kore raatlo bhi 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ admit aate he is having lepto and dengue together platelet count is down to only 4000 now I can treat everything I can put him on ventilator antibiotic aw pura nawa guna malpuli and a platelet diagnosis therapy the donation ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಕಡಾಪಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ನಾವೇ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಜನಕಲ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರನ್ನೇ ಮಾತಾಗಲ ರೇಡಿಯೋ ದೊರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು so very understandably ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ದೊರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ that is not how life should work first point second point emergency ಆದಾಗ ಓಕೆ ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ as a STP but it is not our work to sit and do everything ourselves somewhere society has to take its responsibility blood donation drive the mission and purpose I have donated 18 times so far the first time I donated when I was only 16 years old I have once on record donated 3 times in 1 week in an emergency. Great. You are absolutely going to be fine.
contraindication ಪಟ್ಟ ಏನ್ ಹೈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡೆಂಗು ಮಲೇರಿಯಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ and last 24 hours ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಗು ಅಂತದ we prefer you not to donate blood ಅವರ ಮುರ್ದು ಈಗ 60 kg 40 kgs with ladies and 60 kgs with the gents ಇರ್ತದ ಈ blood donate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first point second ಈಗ hemoglobin ಈಗ ಸ್ವತಃ hemoglobin should be more than 11.5 if the ladies national hemoglobin ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ಬೋದು so don't go to donate if you are below 11 and if you are above 11 yes you are free to donate. One point I remember last time someone made if the ladies national anemia ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು you want to know why I'll explain the simple point. Inter time ನಾವು cooking ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ Teflon use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು it is a highly carcinogenic thing which was brought from western standard. Now we are using iron the karmata we are using the vessel that is actually the right way to cook but for some reason we find that very tedious and we have all shifted to Teflon in modern day. I think modern day ladies nagging iron come whereas ladies in the village who are cooking in the old vessel they are still having normal iron level. Anyway, coming back to blood donation, ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 times ಕೊಡೋಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ವರ್ಷ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೆವರ್ ನೋ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ an emergency in family and you may have donated and your family member may not be able to donate for that. Point number 2 ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಗ ನೆತ್ತಿನ ಬರೋದು ನೆತ್ತಿನ ಬರ್ತಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ 350 ml ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅವು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಈ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು 350 ml ಕೂಡ ಇರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ 60 seconds ಬಿಡ ಅವು ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕು so your hemoglobin is back to square one in 30 seconds only. That is because the spleen is a storage. It releases the blood. That spleen to get back the blood will take about 90 days. All the maximum 90 days will do. Fit janake 30 ಗಂಟೆ ಹೋದರೆ ಅವರ hemoglobin normal ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ we make 4 components out of it. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದು whole blood ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ whole blood ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಟ್ಟಿರೋ ನಾವು ಬೆತ್ತೊಂದು 1 pack cell ಕೆಂಪು ಕಲರ್ನ ಬ್ಲಡ್ that is called RBC ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ದೆಪ್ಪಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೆಲವು ಐನಾಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀಪ ಮೂಜಿನೇ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂಟಿನ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು leptospirosis, clotting factor, liver failure athlete korpa and nalle cryoprecipitate. These are clotting factors which are removed through the machine and given for children who suffer from clotting factor disorders. So when you are donating blood, you are not saving one life, you are actually saving 4 plus many because the platelet bag of 6-7 may again be divided among many people. So remember one thing in life, saving a life is probably the biggest thing you can give back to society. Donation to temple, how to put it is subjective if you personally ask me. But if you actually have a habit of donating blood, it's a great habit. If you can, once at the Tata Memorial, our Tata Memorial Hospital, have a look at the children there who are on regular blood transfusion, regular requirement of thalassemia patients who require platelet, FFP blood. You will realize that there is a gross shortage. And these shortages are actually being filled by professional donors, something we don't want. Professional donor pata, if Papa the cash goes but the donate muji gold. I don't fear factor to the HIV because they usually tend to get infected. One last point. You may be fearful that blood donation for many HIV infection chances. Dummuda type ಕೆಲಸಕ್ಕೆ reusable needle bags ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. That concept 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. The bag is completely new, the needle is new, everything is new and then thrown away. ಈಗ blood ಕೊಟ್ಟಿನ ಜನಗಳ blood ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ many ತರ infection ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು we destroy it within a section of the lab and then transfer it to the BMC setup and whatever is tested clear that is moved into the general lab. So now the request for that blood donation drive please continue today and CPR the social like compare CPR learn it. Yenna 20 years career and 20 years career. COVID 1 lakh ashtasarajana and do that. Covid and ICU the chief put the bed
I have done personal security and a team would so I am not directly in the ICU, so team not to pay. But yeah, PG student and enter the student case medical academy. Thereafter enter the student are the out professor. But in my career, when I was ICU in charge, standing in ICU, I must have offered CPCR to about 900 people. I the terminal case like particular last patient out inside the. But I am talking about a recoverable patient. Now 100 out of 100 patients after CPCR. First point. 2. Abroad, everybody wants to do CPCR. Whether it is a kid, whether it's a school teacher, whether you go on the beach or in a plane, everywhere. India, even the trained nursing staffs are sometimes not good at doing CPCR. When we are seeing them do it, we can make out looking at the screen whether it is correctly getting translated or not into a real CPCR. After that is not even in the right place they are keeping it. Our ultimately the video, which is I think there will be a demonstration. Please see it. I'll give you an example. Patient Vaishnavi required, how go-karting or something they were doing. How vehicle ulta, the lady fell down. Momentary cardiac arrest under momentary. इतना पूरा गोपे हाथ में लेडीज ना के लिए एक आधा जना वीडियो कॉल बात तो रहे critical ना मिनट का टाइम वेस्ट करते हुए all they had to do was this and the heart would have restarted. It's called a precordial thumb. It thumb कर देते हैं it would have started. मोकल का गोपे ने हाथ में तो पता चला कि फोन बंद है patient है and she was only 28 years old. So one critical silly error by people of only screaming, India nobody is willing to do anything about it. Never panic, first point. You have to be confident. 2, you have to see it. If you don't see the video, you don't know how to offer it. 3, general public you don't go to advise it. That kind of medical legal is happy a chance to do. So if you are a doctor, you can do because you are primarily now CPCR that one argument but if it is your known person at home, please understand that CPCR is a genuine life-saving procedure. We do it even if I was standing here and some event doctors are going to do CPCR, but difference is I will professionally continue it till the ambulatory team arrives. We intubate, put you on ventilator and then transfer to hospital. General public are usually interested to move in and one play. It is completely subjective because CPCR is very tough to do. An average CPCR even for professional people like us, we can't go beyond 4 to 7 minutes. It's quite exhaustive. So I'm assuming there is someone who will be showing CPCR, sir will explain it. But thank you very much for having me, sir. I am gratefully obliged to you. And last 10th August, we are planning to have a Doctors Association Funds first time. Funds Doctors Association format. Association of Funds Doctors. APD our we are planning to get about 450 to 500 doctors and consultants to Bansar on 10th of August and have an interactive session with complete Bansar along with various doctors of super specialty. Dr. Sadaran Shetty, Dr. Harish Shetty, Dr. Jabedeve, specialist nothing but any possibility that we are planning to have a general talk on various topics for the interactive session that a team of doctors Bansar is arranged. But so we are hoping that doctors will now start getting a little more proactive in Bansar. So hopefully we should start from 10th August. I think the invitation now also the meeting I will probably be meeting or personally and handling. Thank you very much. Thank you, sir. There is a reason we couldn't say why you CPR our show the Michelle Pantuera, which was the American Michelle Doctor letter, Naga Mosquera, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸಭಾದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಚೇರ್ಮನ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನವೀಯ ವರ್ಗದ
of India, we can say. Material. ಒಬ್ಬೇ ವಿಷಯದ ಕೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೋಡಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯವಂತರು ಅಪರಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನೀವು ಓವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಡೆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಸೀರಮ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನಿ CPR ಕಾರ್ಡಿಯೋಪಲ್ಮನರಿ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿಸಸ್ ಶ್ರುತಿ ಪಟ್ಟಿ మీరు ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಿ CPR ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಚಾನಕ್ ಇತರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಇರ್ತದೆ ಇತರೆ ಹೊರ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ बोलो एम्बुलेंस बोलो वो का मेडिकल एरिया होते कोई भी उसकी नजदीक भी जाते हैं ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಡಿಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು ಅಚಾನಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಕೋ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊನೆ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರ್ಜನ್ ಔಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಐದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ MGM ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನೆಸ್ಥೆಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐದು ಬಿಡ್ತು ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ చాలా ఉంటుంది ఒక ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ದವೆ ಅನೆಸ್ಥೆಸಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ఒక ದೊಂಗುಲಿಗಲ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕರನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ಲಂಗೆ CPR ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ఒక ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ಸಿಂಗ್ she is a very eminent gynecologist ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಈಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ರೀಜೆನ್ಸಿದ ಅನಂತ ಇದು ಅక్కడ ಡೈಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಒಂದು ಐದು ದೊಂಬೂರಿ ರಚನೆ ಇತ್ತು दादा निकले गेले निकले वापस कंसर्ट ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕರ ಹೋಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಕಲಿತಿದ್ದೋಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರುಣಾಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತದ ಕನ್ವೀನರ್ ಶ್ರೀಕಾಲ ಕರುಣಾಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿನ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ಮಾನವಿಕ ಬರುವುದನ್ನು ಕರುಣಾಕೃಷ್ಣ Thank you, Mohit. ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿನಾಗಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೋದು ಬಟ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಬರ್ತೀನೋ
ಜನರನ್ನ ಒಂದು ಜೀವವೈಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸವಾದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಂಧನದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಾರಿ ಹೆಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ ಬಂದು ಬೇರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಂಧನದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊದಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಕ್ಕಳು ಜರುವಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿ ಮತ್ತು ತೋರೆ ಏನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸಾಧ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದುಃಖದ ಅವರು ದಯಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋದು ಇದು ಮತ್ತದ ಮತ್ತೆ ಈತ ಮೊದಲ ಸಂಘದ ನಡಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವು ದಿನದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮರಳಿ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತಾ अंजने मेरा दोस्त बड़े साहब आए और सभी डॉक्टर से यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर तो बहुत है सबका आपका अभिनंदन करता हूँ एक्चुअली हम लोग हमेशा बोलते हैं वैद्य और नारायणी है हम लोग दो ही भगवान दिखते हैं एक दिखता नहीं दूसरा भगवान बोले तो डॉक्टर से हम लोग हमेशा डॉक्टर को सबसे जास्त पूजा करने का कोरोना का टाइम है डॉक्टर उसके लिए आपका सबका हमारा बंधन की तरफ से अभिनंदन करता हूँ प्रति डॉक्टर स्वरूप भारी प्रोग्राम पंपे ब्लड डोनेशन मंत्री बंडी ब्लड मूडी जीवन साधन बंद अवर मपदी डोनेशन ದುಡ್ಡೇ ಕೊರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಮಪದಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೋ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಸಲ ಕೊರಗಿ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದರೆ ಬಂಗಾಪಡು ಅದು ಇಷ್ಟ ಕೊರಗಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಜೋಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಯೂತ್ನಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಯೂತ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬರು ಒಂದು ನಿಧಾನ ಕೆಲಸ ದೇವಣ್ಣ ನಂತರ ಆಪುಡಿ ಬರಬೇಕು ದೇವಣ್ಣ ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಕೊರಗಿ ಇದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದು ಆದರೆ ವಿನಯನೆ ಬಂದಿದೆ ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನಕಾರರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಮರಾಠ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಯಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆನಂದನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಕೊಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಕಮ್ಮು ಆನಂದನ ನನಾತು ಈಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರೆಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂದು ನಾನು ಅಜಯಪ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದ ನಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು All the doctors over here, we have 9 regions, one region all over Mumbai. And under the leadership of Anand Shetty, the person who is wearing yellow shirt is a chairman of Dover region, and we are the champions. We are the champions. Under out of 9 regions, we are the number 1 team at present. That is only because of Anand Shetty's leadership, and we have so many people. Subha Shetty is there, Yogi Akka is there, and Parishwar. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬಹುದು ಡೋನರ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಪ್ತು ಈಸಿ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯೂತ್ ವಿಂಗ್ ಡೋನರ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಮಾದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೋನರ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾದಾಗೆ ಏನು ಆನಂದ್ ಇಂಚೂರಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಎದುರು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ಸ್ನಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡರ್ಪುರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸಬ್, ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲಿಗೆ ದಾನಿ ನಕಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರಿಗೇನೆ ಅವರೊಂಬತ್ತು ಗುಂಪರ ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಡಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿ ನಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿನ ದಾದಾನದ ಬೇನೆಗೆ ಪುಗೆಲಾದ ಉತ್ತರವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಂಟೇರು ನಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಏನಿಬಿಟ್ಟ ಬುಡಿದು ಪಾಡಿಸ ದಿನೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರಡಲ್ಲ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಅಸ್ದೆಪಾಡದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ఒక డాక్టర్ విఎం శెట్టర్ కరుణాకరణ ఒక మాత ప్రజ్వలని మహిళా విభాగ చెందిన మాత బయట బంధువులు వందని ಆನಂದನೇ ಗುರುಕಾರನ ಗೆದ್ದ ఒక ದುರ್ಗಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಗಳು ಅವನದ್ದು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲ ಟೀಮ್ ಪ್ರಜ್ವಲ ದೇವನಾಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂಘ ಸೋಷಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಾನು ನಾಯಕ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಗಿ ಪರ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಗಿ ಪರ ನೋಡಿದ ಬಾರ ಇದ ಮಾತೊಂದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಗಿ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಈ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇಶ ಬಂದಾಗ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಂದ ಬೀಣ ಈ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತದು ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವರು ಅಗತ್ಯದ್ದು ನನ್ನ ಸುರುಳು ನಾವು ಬಡಿಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಏಕೆ ಬಂಗಾಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಜನರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದೆ ಇಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಳಗಾಗಿದ್ದವ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಐದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಟಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದೋದ್ರೆ ಜೀವನದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡೋದು ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಂಬತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಭರತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಕ ಎಡ್ಡ ನಿರೂಪಕಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಾವು ಎಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅಂಜನೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂಜನೆ ಬೀನಾ ಪಟ್ಟ ಸುರುಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು ಬೀನೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತಲುಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಣೆ ಭರತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಸಾಕಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಮಸ್ತ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಣ್ಣಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ತಂಡ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಳೆದಾಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟೀಮು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಅವಳಿ ಬ್ಲಡ್ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅದು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು 10 ದಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಮುಗಿದ 6 ಗಂಟೆ 4 ಜೀವ ವರ್ಕು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಬರೋದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ದಾನವನ್ನು ಬಡವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲಾಗುಂಡು ಕಾಲೇಜಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿದಂತ ದಾನ ಮಾಡುವ ದಾನ ತಂದ ಖಾಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋರು ದೇವ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಊರುಗಳಂತೆಯೇ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲಡ್
ಬದಿಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರ ನಂಗೆ ದೋಷ ಅವಳ ನಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಣ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಲಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ ಅಂತ ಗೆಡ್ಡನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸಂಗ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿವೈಡ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬಣ್ಸಂಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿವಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂದನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಸೇರಿದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಡ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆನಂದನ ಟೀಮ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಪಾಠ ಇದು ಸೀನಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಬನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬನ್ಸ್ ಯೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಟೀಮ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂದನಗರ ಸುಕುಮಾರನ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸುಲಭ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಟ್ಟ ಸಂಘದ ಗುರುತರಾಗಿನ ಆನಂದ ಪ್ರಬಂಧಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯನ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಖಿಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಜನಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಮಠಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಬರಮ್ಮ ಮಾಮು ಮೂಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೆರಿಸ್ನಾಯ ಬೆಟ್ಟ ತುಂಬಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ ಬುಕ್ಕನ್ ಕೊಡಿ ಬರ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರನಿ ಟೂರು ಬಂದು ಅಂಚ ಆರು ಬೇಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಬಿದಳಿಯರು ಅಂಜನೆ ದಿವತಾಂಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಿದರ್ದು ಹೋಯರು ಅಂಜನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಬಂಡ ಪೂರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ನಾವು ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎದುರುಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಕರುಣನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎದುರುಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ದೇವ ಪೋಪಿನ ದೇವ ಪೋಯರು ಐದು ಎಂಟು ಫುಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಕರ್ನನ್ನ ದೇವ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಭಾಕರಣಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ವಿಂಗದ ಚೇರ್ಮನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಜನೆ ಯಾರು ಕುದರ್ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಾತ ಆರ್ನ ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ನ ಬೇಗ ಹೋಯರು ಅಂಜನೆ ಮೂರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಕಮಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳರು ಹಿರಿಯ ಇಲ್ಕಾಮಣ್ಣರು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕ ಉರ್ಲೇರು ಮಾತ ದಾನಿನಕ್ಕರು ಉರ್ಲೇರು ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಹೋಟೆಲ್ದ ಊರು ಕೂಡ ಬೈದೇರು ಹೋಟೆಲ್ ತಕ್ಕ ಯಾಂಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ರೆ ರಕ್ತದಾನ ಕೊಡ್ರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಂತೆ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಡಿಕೊಂತೇವೆ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚೆನೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬಂದ ಗೌರವ ಬಂದ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಭಾರಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಪಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಅಶೋಕನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಜಗದಾಂಬ ಮಂದಿರದ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೂಡ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಡೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ CPR ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು आज डॉक्टर के मेंबर्स आए डॉक्टर का इसमें ये अपना अभी क्या है याद रखना थोड़ा ये रहता है इसके पढ़ के बोलता हूँ डॉक्टर मिसेस श्रुति पढ़के डॉक्टर मकरंद पाटिल डॉक्टर संदीप दावे डॉक्टर अशोक भोले डॉक्टर सुशीला सिंह आप लोग को भी मैं स्वागत करता हूँ आप लोग को धन्यवाद बोलता हूँ रक्तदान मामल्ल दानगे ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೌಚ್ ಹೊಡೆದು ಮುಂದಟ್ಟು 4 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಪುನ ತಾಕತ್ತು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ನಿಕ್ಕಲು ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ डॉक्टर विजयेंद्र पंडित स्वरूप बतक अगला भारी शांत मनस्सिदारे एट्टे ಕೆಲಸ ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದೆತ್ತಲ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ 8 ಗೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಟರು ಎಡಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅರೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರು ಅದು ಪಕ್ಕ ನೀವು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ದಾಖಲು ತೀರ್ಥಪುಲ್ಲದ ಇವರು ದೇವರಂಡ ಸ್ಟೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಯೂತ್ ವಿಂಗದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ನೋಡು ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಯುವಕರು ಯೂತ್ ವಿಂಗದಕರು ಈತು ಬೆಂದೆ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ದೇತೋನ್ನ ಅಂತ ಅವರ ಮುರಣಿ ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂತ್ ವಿಂಗದಕಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಕಲೇ ಯಾರು ಏದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಕಲ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ಎಂದು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಗಳ ಜಪ್ತಾರೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಅಕಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಂಡಲ 3 ಯೂತ್ ಡೋನರ್ ನಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕುಡವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಅಂಜನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಜ್ವಾಲ ಕೇಣಿಯರು ಉದತ್ತ ವಾದದ ಬಾಡಗಿ ಎತ್ತು ಅಪಗ ಅಪಗ ಸದನ ಮೂಲೆ ಇದ್ದರು ಭಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿತ್ಯರು ಶೇಖರ್ ಫೋನ್ ಕೊರಿಯರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫೀಸ ಆರು ಮಂಡ್ಯರು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಎಸಿಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಂಡ 25 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟು ಹಾಲು ಎಸಿದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಖರ್ಚ ಎಸಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಂಡ ಕಟ್ಟು ಹಾಲಿಗೆ 14
ಮೂರು ಇನಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ ಇನಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಯಾನ ಅರೇನು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೇದರ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುರಾಜ್ ಪಟ್ನೀಸ್ ಅಂದು ರವಿ ಅಂಚನ್ ಅರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಪಟ್ನೀಸ್ ಅವರು ಓಡದ ಪೇಪರ್ ಉದಯಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಲಿದನಿ ಸೋಷಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ದ ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಂಚ ಇದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಫುಲ್ಲು ಬೈದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ఒక ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೈತಾರೆ ಲೋಕನ್ನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಪಂಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹರೀಶನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಡೋನರ್ ಪುರಾಣಿ 12 ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೋನರ್ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಡೋನರ್ನ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಯಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪರಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನಗೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಬದುಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು CPR ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಚಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಏಲ ಹೋಗಂತೆ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು ಐದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದನ ಈ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಎಂಟಲು ಪ್ರತಿ ಊಟ ಯುದ್ಧಗಳು ಕರೆತಗಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದವಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಜನತಾ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೀಟುಪಾರ ಬಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ದಯಪಟ್ಟ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗೋಡಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ.ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿಲ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಮುಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ರೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗರ್ ಪಟೇಲ್ I would like to extend my warm gratitude to these doctors. Thank you so much, doctors, for your sleepless nights and tireless days. They are the real heroes behind every heartbeat saved. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಅಹಂಕಾರ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ತೆರಿಗೆ ಮೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಜೋಗುಳಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಪುಗರನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟೆವಾದಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಭಾಕರನ ಹಿರಿಯ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸೊಮ್ಮೆನು ಅಂಚನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟಲ ಸಂಘ ಡೊಮಿನಿಕ ಬಟ್ಟಲ ಸಂಘದ ಸುರೂಪು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಉಡಲಿನ ಅಂಚನೆ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಚಾತುರ್ಪುರ ಪದಗಳು ಓವೇ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಸಭೆ ಪರಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾದ ನೆರವಾದುಕೊಟ್ಟಿನ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅರಗಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಉಡಲಿನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅರಗಿನ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಉಡಲಿನ ಅಂಚನೆ ದೊಂಬಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಘದ ಜಯಂತ ಸಚಿನ ಅಂಚನೆ ದಾರಿಗಳು ಕೊಂಡ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮಂತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೋಗುಲು ಕೇಳಿ ತಂದು ಒವೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯನ್ನು ತ್ವಜಿಪಾ ಬಂದೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸುರುಗಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ್ಣ ದಾನಿಗಳ ಹಿಂಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೊರುಂಡ ಹಾಗೆ ದೇವರು 100% ಐದ 100% ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಬಂದ 50 ಮೇಲೆ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರವಾದ ಉಪ್ಪಡೆ ತಂದ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಆ ಕಟ್ಟಿದಪ್ಪದ ನಟ್ಟೊಂದು ಡೊಂಬಿಡಿ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದವರು ಮುಂಚೆ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ ಆಗದೆ ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಧು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಯೋಗಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಭಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಇರೆಗುಲರ್ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಚ್ಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನನ ಗೆದ್ದೊಂದಿನಾರು ದಿನೇಶನ್ನ ಒಡೆದಿ ದಿವ್ಯಾ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಮೂಡಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿನ ಸೂರ್ಯ ಪಟ್ಟಾಯಿತು ಕಂದೊಳಗೆ ಮಂಡಿಗೆ ಮೈಕಿನ ನೀರು ತಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ನರಮಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಓದಿದಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆಗ ಆ 4 ದಿನದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ಮನುವ 5 ಜನಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಾದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವಪನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಕುಟುಂಬವರೆಗೆ ಬಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ನಟೊಂದು ದಿನೇಶನೇ ಮಾತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಿವ್ಯಕ ಇರೇನ ಜೋಡಿಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ತಿಕ್ಕಡೆ ಕಂಡದ ಭಟ್ರ ಸಂಘ ದೊಡ್ಡಳಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಗೀತಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಯುವ ವಿಭಾಗಗಳು ದೇವರ ನಟೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂಘಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಡೆ ನಮ್ಮ ದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಐತ ವಿವರಣೆಯ ಪೇಪರ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲದ ಪೋಟ್ನಿ ಸುಳ್ಳಿರು ಅರೆಗಲಾಯಿಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅಂಚನೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಪೋಟ್ನಿ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೋಟ್ನಿ ಸರ್ ರವಿ ಅಂಚನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಗೆ ಸರ್ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೀತ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಡ್ ಐದು ಕೆಲವರು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉದರಪನೋಜನ ಪಾಂತ್ಯರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಂಡ ಎಂಟು ಉದರ ಪನೋಡ ಒಂದು ರವಿ ಅಂಜನ್ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗಲಿ ಪೂರ ಬಂತೇವೆ ಆರ್ನ ದೋರ್ಪಿದಾಗಲೇ ಬಂತೇವೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ 3 ಇನಿ ಜಾತಿಯ ಕೈತಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನಂತನ ನಿಕುಳು ಜಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ ಬಂತೇವೆ ನಿಕುಳು ಜಪ್ಪುಲೆ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ನಿಜವಾದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪುರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪುರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂಟ ಜಾಬಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ನನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಏನ ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಜೋಗುಲು ಈ ಜೋಗುಲು ದೈತ್ಯ ತೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಓದ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಈ ಜೋಗುಲು ದೈತ್ಯ ತೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓದ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಟ ಜಾತಿಗಾಯನೆ ಮದುವೆ ಆಪ ಜಾತಿಗಳು कोविड के दौरान जो भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स बनी थी वो सारे दुनिया भर के एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी बेहोशी के डॉक्टर्स ने बनाई थी। तो बेसिकली आज आपके लिए हमें मेन ये लेके आए हैं बेहोशी का डॉक्टरों का एक्सपर्टीज जान कैसे बचाना है लाइव लेके आए हैं। इंटरेस्टेड? वेरी नाइस। ऑलराइट। तो मैं बेसिकली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के ट्रेन सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर मैं उनके सारे इमरजेंसी जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सिखाती हूँ। इंडियन रिसर्च काउंसिल फेडरेशन के अंडर आई एम एन इंस्ट्रक्टर। माई अकेडमी इज एक्रेडिटेड अंडर इट। पूरे महाराष्ट्र में मेरे अकेले का सिलेक्शन हुआ था 2 साल पहले बाय इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस टू बिकम द मास्टर ट्रेनर फॉर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एट दिल्ली। अब मैं इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल कामोठा में काम करती हूँ एज अ फुल टाइम फैकल्टी। एंड मेरा ये एक पैशन है, ये कॉलिंग इट द लाइफ सेविंग मूवमेंट, मतलब जान बचाने की मुहिम, चळवळ मराठी में जब अगर बताया जाए। बेसिकली इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, ये हम अगले 1 घंटे में सीखेंगे। ऑलराइट। आई वांट यू ऑल टू क्लोज योर आइज। आंखें बंद करके बैठिए। ओके, खुद की आंखें बंद करनी है। छोटी सी एक्टिविटी करना है। चलो, खुद की आंखें बंद करना है। बंद करके बैठो। लंबी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ इन और
और जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, रिलैक्स योर बॉडी, कंप्लीटली रिलैक्स। लंबी और एक सांस लीजिए और एक लंबी सांस लीजिए, और जैसे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो, रिलैक्स इनटू इट कंप्लीटली। ओके, आंखें बंद करके करना है सर। अभी अगली सांस जो लोगे उसको रोक के रखना है। प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ इन, और इस बार सांस को छोड़िएगा नहीं। प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड होल्ड योर ब्रेथ। जब तक कि आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, रेस्टलेस फील नहीं होता, प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ इन और सांस को रोक के रखिए। ओके, जब अनकंफर्टेबल रेस्टलेस फील होना शुरू हो, सांस छोड़ दीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए, आंखें खोल के बैठ जाइए। जैसी रेस्टलेस फील हो, आपको सांस नॉर्मल लेनी है, आंखें खोलना है और बैठ जाना है। ओके, इसको हम लोग एनेस्थीसिया में लंग होल्ड, मतलब ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं। हम इसको चेक करते हैं आपको बेहोश करने से पहले। अच्छा, काफी लोगों के बहुत अच्छे ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटीज हैं। आप लोग प्राणायाम में स्विमिंग करते हो, वेरी नाइस, वो पता चलता है। तो हमने इसके लिए एक टेस्ट नहीं किया। 20-25 साल पहले एक अमेरिका में स्टडी हुई थी, जहाँ पे लोगों ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की, पर फेल हो गए। पास हो जाता तो क्या होता, राइट, पर वो फेल हो गए। तो उनके ऊपर स्टडी की गई, उनको एक क्वेश्चन है दिया था 20-25 क्वेश्चन का, और उनको प्रश्न पूछे गए, उनको जवाब देने थे। कुछ 150-250 लोग थे, उन्होंने वो सारा क्वेश्चन है सॉल्व किया। उनको ये देखा, मतलब जब स्टडी की गई, उनको जब साइंटिस्ट ने देखा तो उनको ये पता चला कि सारे क्वेश्चन के जवाब अलग अलग थे। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, कारण आत्महत्या करने का सबका अलग था, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। पर एक क्वेश्चन का जवाब सबका सेम था। वो क्वेश्चन था कि आपने आत्महत्या करने का वो जो स्टेप था वो ले लिया, यू टुक दैट स्टेप, उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ, व्हाट डिड यू फील? ओके, तो उन्होंने सब ने एक ही लिखा था कि जैसे मैं मरने की तरफ जा रहा था या जा रही थी, मुझे ऐसे लगा कोई आना चाहिए और मेरी जान उन्होंने बचानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सब में होता है, जैसे इंसान में होता है। छोटी चीटी को भी आप मारने की कोशिश करते हो तो वो भी जान बचाते हैं ना, वो भी कहती है, वो ऐसे नहीं कहती इतना बड़ा इंसान मार रहा है मैं मर जाती हूँ, ऐसा बोलती है, वो भी जीने की कोशिश करती है। सेकेंड चांस एट लाइफ चाहिए उसको भी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड चांस एट लाइफ, सबको जरूरत होती है। अभी आपने नाक बंद करके रखा था, सांस लेने के लिए आपको रेस्टलेस होने लगे तो आपने सांस ली। क्या क्या फीलिंग्स हो रही थी आपके मन में, क्या क्या फीलिंग्स आ रही थी, क्या क्या फील हुआ? घबराहट किसी को महसूस हुई? किसी का सीने में धड़कन तेज हो गई? हुआ, वेरी नाइस। घबराहट तक पहुंचे नहीं, हमने सांस ले लिया शायद, बराबर। सफोकेशन किसी को महसूस हुआ, राइट? तो हम आगे गए नहीं ना, बट इमेजिन करो कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी में है, उनको ये सारी फीलिंग्स, सफोकेशन होना, दम घुटना, घबराहट होना, पैनिक फील होना, जान जा रही ऐसे महसूस होना, ये 100,000 टाइम्स ज़्यादा होता होगा। ऐसे लोगों को अगर आप सेकेंड चांस दे पाओ तो अच्छा लगेगा। हम लोगों दे पाओगे तो अच्छा लगेगा, आया ना? वेरी नाइस। तो सीखना है, आज वही लेके आए हैं। आप लोग किसी इंसान को भी सेकंड चांस दे सकते हो। सीखना है, डू यू वांट टू बिकम लाइफ सेवर्स? वेरी नाइस, ऑलराइट। सो जब हम शुरू करते हैं, हम पहले शुरू करते हैं बात करना फर्स्ट एड क्या है, व्हाट इज फर्स्ट एड। ओके, आप लोगों को क्या लगता है फर्स्ट एड क्या है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फर्स्ट एड? कौन दे सकता है फर्स्ट एड? Who can give first aid? Doctors? आजू बाजू वाला आप लोग दे सकते हो फर्स्ट एड? नियरेस्ट Allowed to give? Yes. तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है या कुछ और है? क्योंकि अगर ट्रीटमेंट है तो सिर्फ डॉक्टर दे सकते हैं, बराबर? पर आप लोग भी दे सकते हो तो ट्रीटमेंट है? इट इज हेल्प। ओके, फैंटास्टिक। और कुछ फर्स्ट एड के बारे में? मान लो एक इंसान को फर्स्ट एड में ट्रेनिंग मिली है, वो फर्स्ट एड दे रहा है, और एक इंसान को ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो भी फर्स्ट एड दे रहा है। मान लो हाथ में कटा है, पट्टी बांधनी है, मैं फर्स्ट एड में ट्रेनिंग ली हुई हूँ, तो मैं जो फर्स्ट एड दूंगी, और एक इंसान फर्स्ट एड में ट्रेनिंग नहीं मिला है, वो फर्स्ट एड देगा। दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। क्या होगा? ओके, परफेक्ट। मतलब इस बारे में पट्टी तो बांधनी है, मैं भी बांध सकती हूँ, वो भी बांध सकते हैं, क्या फर्क है? आप सब लोगों ने हाँ करके
ट्रीटमेंट अच्छा नहीं दे पाए तो हो सकता है उस इंसान की जान भी चली जाए। ओके, तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं, अब क्यों हम लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या सिखाते हैं आपको, कैसे सिचुएशन आइडेंटिफाई करके पहचानना है, क्या स्टेप्स लेनी है तुरंत, टाइम बिना वेस्ट किए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हम क्या सिखाते हैं, उस सिचुएशन में क्या नहीं करना है, ये हम सिखाते हैं। सीखना हम लोगों को ऑलराइट। सो जब हम फर्स्ट एड की बात करते हैं, हम इस 3 पीस की बात करते हैं। जब हमारे पास आप ट्रेनिंग लोगे और इसके बाद फर्स्ट एड दोगे, आप उस इंसान की जान बचा पाओगे। जब आप इसके आगे फर्स्ट एड दोगे, आप देखोगे कि उस इंसान को ऑलरेडी जो डैमेज हुआ है और वो खराब ना हो। और तीसरी बात, आप ऐसा फर्स्ट एड दोगे जिसकी वजह से अगर 4 दिन में ठीक होने वाली होगी वो चीज़, तो वो शायद 3 दिन में ठीक हो जाए, ना कि 40 दिन लगे। होता है ना कि आपने हाथ लगाया तो और ज़्यादा खराब हो गया सिचुएशन, करेक्ट? ऑलराइट, सीखना है, वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में। ये 4 जानलेवा हादसे होते हैं किसी भी इंसान के लाइफ में। 4 लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स किसी भी इंसान के लाइफ में। चोकिंग मतलब सांस की नली में कुछ फंस जाना, सांस नहीं ले पाना, इंसान मर जाएगा। स्ट्रोक मतलब लकवा, पैरालिसिस का अटैक, ब्रेन अटैक, उसमें भी जान जाती है। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। कितने लोगों को पता था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग है, दे आर डिफरेंट, एब्सोल्युटली डिफरेंट। कितने लोगों को पता था हार्ट अटैक? ओके, वेरी नाइस। और अरे वेरी नाइस, ये क्या होता है मैडम? कमिटमेंट इश्यू। ऊपर करो बात। ओके, क्या डिफरेंस है सर, बताइए। हाँ बताइए ना, बताइए चलिए। फैंटास्टिक, ओके। ओके, ठीक है मैडम, आप बताओ। जो भी पता है, that's okay, perfectly fine. See, आज आप जो भी बोलोगे ना इससे रिलेटेड, मैं ऐसे क्या सीरीज जवाब दे रहे हो, ऐसे मैं नहीं बोलूँगी। और आपको कोई भी डाउट है, आज कोई भी मन में डाउट लेके नहीं जाना है। जो भी डाउट है, जो भी सुना हुआ है, वो सब क्लियर करके जाना है, ठीक है? क्या क्या आपको लगता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क? जो भी पता है बताओ, चलेगा। ओके, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पर अगर यहाँ पे आप पढ़ोगे तो लिखा कार्डियक अरेस्ट इज द अल्टीमेट मेडिकल इमरजेंसी। इसका मीनिंग कोई बता सकता है मुझे? कार्डियक अरेस्ट इज द अल्टीमेट मेडिकल इमरजेंसी, मतलब कार्डियक अरेस्ट से ऊपर और कोई भी और ज़्यादा खराब इमरजेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्डियक अरेस्ट इज डेथ, मतलब कार्डियक अरेस्ट हुआ, इंसान मरेगा फॉर श्योर। आपने सुना होगा ना, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बहुत एकदम मस्त हेल्दी थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दवाई नहीं लेते थे, राइट? लेकिन ओल्ड एज की वजह से गुजर गए। ये सुना है सबने, राइट? सबने सुना, सबके लाइफ, सबके फैमिली में ऐसे हैं। क्या हुआ? हार्ट इतना बूढ़ा हो गया कि काम करना बंद किया, कार्डियक अरेस्ट, एंड दे पास्ड अवे। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? जैसे सर के सर से ही बताया, कार्डियक अरेस्ट इज हार्ट का बंद हो जाना। हार्ट काम करना बंद कर देता है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो बूढ़ा हो गया, हार्ट काम करना बंद कर दिया, द पर्सन पास्ड अवे, ठीक है? पर हम फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बोल रहे जान बचाने की बात कर रहे हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट इज डेथ, तो फिर हम ऐसे फर्स्ट एड आपको सिखाएंगे जहाँ पे कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो आप इस इंसान को कुछ तकनीकें हैं वो फॉलो करके उनका जान आप बचा सकते हो, वापस लेके आ सकते हो। इज दैट ओके? इमेजिन करो ये रूम लाइफ है, जिंदगी है, ओके? और इस रूम को एक ही दरवाजा है, करेक्ट? दरवाजे के बाहर स्वर्ग और नरक है, ओके? दरवाजे के बाहर स्वर्ग और नरक है। दरवाजा कार्डियक अरेस्ट है। अगर आप दरवाजे के अंदर इंसान को लेके आओगे, वो जिंदा रहेगा। दरवाजे के बाहर गया तो वो मर जाएगा। कार्डियक अरेस्ट इज डेथ, राइट? ओके, सो देन व्हाट इज, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आपके सामने आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए क्यों लाया है? क्योंकि पैंडेमिक अभी हमें बाद में आया। अगर आप देखोगे तो 2018 और 17 के ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। ये क्या बोलते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट डिसीज जो है, ये इंडिया में इतनी बढ़ गई है अभी कि हर तीसरे इंसान को आज हार्ट डिसीज होने की संभावना है। डायबिटीज तो है ही, राइट? और कहाँ पे देखा जाता है हार्ट डिसीज का रिस्क? अर्बन, वेरी एजुकेटेड एंड यंगर
सही फर्स्ट एड है या गलत फर्स्ट एड है, ठीक है। सही फर्स्ट एड दिया जाता है, मतलब यस बच्चों को बताने के लिए बुलाते हैं, करेक्ट। तो अगर हार्ट का काम क्या है वो बताओ पहले। हम लोग एक स्कूल में गए थे 6ठी से 10वीं की कक्षा बच्चों को सिखाने, हिंदी मीडियम था। मैंने कहा दिल का काम क्या है बताओ, तो छोटा बच्चा खड़ा हुआ बोलता दिल का काम होता है धड़कना। पता नहीं आपको डॉक्टर, हमको पता है, पूछे आपको तो दिल का काम होता है धड़कना। पर धड़कता है तो क्या करता है दिल, क्या करता है, सर्कुलेशन, ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो ब्लड को सर्कुलेट करने की क्या जरूरत है, उसमें से क्या देता है वो पेशियों को, ऑक्सीजन, करेक्ट। पूरे शरीर को जब ब्लड सर्कुलेट करता है दिल पंप करके तब वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। पर अगर वो नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा, आपने भी नाक मुंह बंद करके रखा हुआ, सफोकेशन, उसके बाद बराबर। तो वही होता है जब पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलता, दिल अगर काम नहीं करेगा तो पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। पर दिल खुद काम कर रहा है, कितनी देर काम करता है आपका दिल, 9 से 5, 9 to 5 ड्यूटी, हाँ ना, है, कितनी देर काम करता है आपका दिल, 9 to 5 जॉब है, कितनी देर, 24 आवर्स। कब से, लाइफ टाइम में कब से शुरू किया उसने काम करना, पैदा हुए या मम्मी के पेट में थे तब से। यहाँ पे अपने पास गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन बैठे हैं मैडम, वो भी बताएंगे मम्मी प्रेगनेंसी कंफर्म कब होती है, दिल की धड़कन बच्चे की सुनाई देते तब डॉक्टर बोलते घर पे सबको बता दो, बराबर। तब तक ह्यूमिडिटी पॉजिटिव है तो भी नहीं अभी भी बताना है, बराबर। जब दिल की धड़कन सुनाई देती तब मेरा, हाँ कैलकुलेट करके बताओ, 90% ब्लॉक है तो कितना खून मिलेगा, वेरी गुड। अब ये इंसान सीढ़ियाँ चढ़ेगा, वजन उठाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, दिल का काम बढ़ेगा कम होगा, फैंटास्टिक, बढ़ेगा। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। पर यहाँ पे सप्लाई कितना मिल रहा है, इट इज लाइक आपको 1000 घंटे की ड्यूटी कराएं और 1 घंटे का पगार दें, कैसे लगेगा, तब उठेगा और फिर क्या होगा, स्ट्राइक। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे काम तो बड़ा करा रहे हो लेकिन सप्लाई नहीं है। तो यहाँ का जो हिस्सा है वहाँ की पेशियाँ, उनका दम घुटने लगता है और वो मरने लगती है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। तो क्या होगा, बाकी का जो दिल है, अभी आपके यहाँ पे सपोज 10 लोग काम करते हैं, 5 लोगों ने डांडी मारी, तो 5 लोगों को कितना काम करना पड़ेगा, तो बचा हुआ जो दिल है वो क्या करेगा, ओवर कॉम्पेंसेट, वो अभी भी आपको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब खून का प्रवाह, सर्कुलेशन जो है अभी भी चल रहा है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिल रही है, मतलब इंसान होश में होगा, आपको बता सकता है क्या तकलीफ हो रही है। क्या ये समझ में आ रही है बात, कट टू कार्डियक अरेस्ट, दिल बंद हो गया है काम करना, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं है, इंसान क्या होगा, बेहोश, जमीन पे गिर जाएगा। सिर्फ बेहोश नहीं होगा, उसकी कोई भी ब्रेन की कोई भी कैपेसिटी, मतलब कोई भी काम करेगा नहीं ब्रेन उनका, सांसें भी बंद हो जाएंगी। क्या ये फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को, पक्का। तो हार्ट अटैक में क्या होगा, एक हिस्सा दिल का मर रहा है, बाकी का हिस्सा अभी भी काम कर रहा है, सर्कुलेशन चल रही है, इज दैट ओके। अब शरीर में कहीं पे भी घाव होता है, सबसे पहले क्या होगा, खून निकले, कैसे पता चलेगा, कहीं पे भी घाव होगा, सबसे पहले क्या होता है, दबाया ना, बराबर। तो सबसे पहले क्या होता है, दर्द होता है। पर अगर मेरे हाथ में यहाँ पे खरोच आ गई तो मैं पॉइंट करके बोल सकती हूँ यहाँ पे दर्द हो रहा है। पर दांत अगर सड़ रहा है तो जबड़ा दर्द करते हैं, दांत, जबड़ा, आंखों में नंबर, तो जो ऑर्गन मर गया, बाद में दोनों को शॉक देकर जिंदा किया गया, पर मैं वेजिटेटिव स्टेट, मतलब मैं टेक्निकली जिंदा हूँ पर घर नहीं जा सकती, पर वो इंसान घर पे चल के गया। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि सीपीआर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितनी जल्दी सीपीआर शुरू करोगे ब्रेन जिंदा रहेगा, ताकि बाद में जब आप ट्रीटमेंट दोगे शॉक के साथ, तब वो इंसान एक्चुअली पूरी तरह से जिंदा होकर चल घर पे जा सकता है। तो सीपीआर क्यों दिया जाता है, ब्रेन को जिंदा रखने के लिए। तो सीपीआर ट्रीटमेंट है या फर्स्ट एड है, फैंटास्टिक। तो तुरंत आप जो भी करोगे मैनेज करने के लिए सिचुएशन, ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से मिले लेकर, वो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो सीपीआर इज फर्स्ट एड।
CPR। तो हाई क्वालिटी CPR की ना 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको गिनवाऊंगी, यस, पर उससे पहले एक एक्टिविटी है। मैं ये वीडियो चलाऊंगी, उसमें से आपको काउंट करना है कौन से दाब, मतलब छाती को दबाते हैं हम लोग, नंबर, कौन से नंबर पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई शुरू हुआ, काउंट करोगे? वेरी गुड। कौन से नंबर पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई शुरू हुआ वो आपको देखना है। काउंट। CPR का पहला पॉइंट हाई क्वालिटी, पुश हार्ड पुश फास्ट। इतने जोर से छाती दबाओ कि वो 2 इंच नीचे जाए, 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है? इतनी तेज दबाओ कि वो लगभग 1 सेकंड में 2 बार छाती ऊपर नीचे होनी चाहिए, मतलब 100 से 120 प्रति मिनट की गति पे आपको दबाना है। छाती सिर्फ दबानी नहीं है, उसको कंप्लीट रिकॉल, कंप्लीट खोलना भी है। आप ऐसे ऐसे दबाओगे तो क्या होगा, दिल के अंदर खून जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप धीरे धीरे दबाओगे तो ब्रेन तक खून पहुंचेगा नहीं, बहुत फास्ट दबाओगे तो भी समय नहीं मिलेगा ब्लड को दिल के अंदर जाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हाई क्वालिटी CPR क्या है? पुश हार्ड पुश फास्ट। कितना हार्ड? 2 इंच छाती अंदर जानी ही चाहिए। कितना फास्ट? 1 सेकंड में लगभग 2 बार छाती दब के बाहर आनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? कंप्लीट रिकॉल, पूरी छाती ऊपर आनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट, कौन से नंबर पे ब्रेन को ब्लड सप्लाई शुरू हुआ? 12, 14, 15, एनीबॉडी? 12, मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप छाती दबाना बंद करते हो ब्रेन को ब्लड सप्लाई 0, लेकिन आपने शुरू करने के बाद भी कौन से नंबर पे ब्लड सप्लाई शुरू हुआ? 12। आया ना? मतलब जिस दरमियान, मतलब आप CPR रोक दोगे और शुरू करने के बाद इस टाइम पीरियड में ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं, मतलब ब्रेन की पेशियां मर रही हैं, बराबर? इसका मतलब क्या हुआ? आपको CPR शुरू करने के बाद रोकना नहीं है। तीसरा पॉइंट ऑफ हाई क्वालिटी CPR, नो इंटरप्शन। एक बार CPR शुरू हो गया, नो सुसु ब्रेक, नो चाय ब्रेक, नो कॉफी ब्रेक, नो इंस्टाग्राम ब्रेक, नो फेसबुक ब्रेक, नो ब्रेक। CPR चलते रहेगा, ओके? पर अगर मुझे CPR कंटिन्यूसली देना है तो मैं थक जाऊंगी, क्वालिटी अफेक्ट होगी। तो चौथा हाई क्वालिटी CPR पॉइंट इज हर 2 मिनट में कंप्रेसर चेंज करना है। मतलब 2 मिनट में मैं थकूंगी तो मेरे सामने और एक इंसान रेडी होना चाहिए। मैंने हाथ पीछे लिया, उसने हाथ रखा, CPR शुरू हुआ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके? तो एक कार्डियक अरेस्ट में कितने लोग लगते हैं CPR देने के लिए? अगर एक इंसान 2, अभी आपको यहाँ पर बुलाओगे तो 2 मिनट कितना होता है पता चलेगा। लगभग 4 लोग, 400 500, 5 लोग, ओके? आपका स्टैमिना देखते हुए 4 से 5 लोग लगते हैं।
से बोलना है, दोनों कंधों पर, ठीक है? तो क्या होगा, एक तो वो रिस्पॉन्स देंगे या रिस्पॉन्स नहीं देंगे। कार्डियक अरेस्ट में क्या लगता है आपको क्या होगा? रिस्पॉन्स देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मृत अवस्था में जैसे शरीर पड़ा होगा वैसे पड़ा रहेगा वो इंसान। क्या ये बात समझ में आ रही है? नो रिस्पॉन्स। तब आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए और तुरंत आपको क्या करना है? शाउट, चिल्लाना है मदद के लिए। 108 को फोन करो या लोगों के लिए चिल्लाओ, हेल्प हेल्प। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? जब तक मदद आ रही है तब तक हम क्या चेक करेंगे? एयरवे, ब्रीदिंग, एबी, मतलब क्या देखना है? सांस ले रहा है कि नहीं इंसान। मतलब ये हाई फाई मत मतलब याद रखना, ठीक है? याद नहीं रखना, लेकिन क्या याद रखना है? सांसें ले रहा है नहीं। हम कैसे देखेंगे कार्डियक अरेस्ट है? नो रिस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, सांसें नहीं चल रही है, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया नहीं है। ये दो चीजें कंफर्म किए हुए बिना सीपीआर नहीं शुरू होता, ठीक है? तो सांसें कैसे देखेंगे? ऐसे सर करके टेढ़ा छाती की तरफ देखना है। घुटने को देखना है, सांस लेते हुए कैसे दिखता है? पेट ऊपर नीचे होता है ना, वैसे अपनी भी छाती ऊपर नीचे होती है, पर कैसे देखना है? सर टेढ़ा करके। इज दैट ओके? कितनी देर देखना है? कितनी देर देखना है? सांस चल रही है नहीं चल रही, चल रही नहीं चल रही, चल रही नहीं चल रही, कितनी देर देखोगे? कितना टाइम है आपके पास? सीपीआर कितनी जल्दी शुरू करना है? जितनी जल्दी हो सके। तो कितना टाइम यहाँ पे डालना है? मिनिमम 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड से कम नहीं, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं। मतलब 10 सेकेंड तक आपको देखना है सांस चल रही है या नहीं। इज दैट ओके? पर हाई पैनिक सिचुएशन होगा, सब डरे होते हैं, कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो 10 सेकेंड में कैसे पता चलेगा? मन में गिनना है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही है बात? पक्का? वेरी गुड। सांसें नहीं चल रही है, रिस्पॉन्स नहीं था, मदद आई है, उसको क्या बोलोगे? भाई ये कार्डियक अरेस्ट है, 108 को फोन करो, AED मंगवा लो, डिफिब्रिलेटर, शॉक देने वाली मशीन। समझ में आ रही है बात? क्या है बात करेंगे हम उसके बारे में, ठीक है? उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? CPR। कैसे देखना है? CPR देना है हाथ की हथेलियां, नॉट फिंगर्स, पूरी हथेली नहीं, हाथ के नीचे वाला हिस्सा, मराठी में टाच बोलते हैं उसको, हील ऑफ द पाम, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको सेंटर में रखेंगे, ये पूरा सीधा रहेगा, ये सीधा। घुटनों पे बैठना नहीं, वज्रासन में नहीं बैठना है, घुटनों पे खड़े होना है। अगर आपका पोजीशन सही है तो पेशेंट का आपका नाम पेशेंट के बाहर आएगा। अगर आपका नाम पेशेंट के ऊपर आ रहा है मतलब आप पीछे झुक रहे हो, गलत है। कैसे होना चाहिए? नाम पेशेंट के बाहर, ये सीधा, कंधा, कोना और कलाई को मोड़ना नहीं है। छाती को दबाने का प्रेशर कहाँ से आएगा? वेस्ट से, कमर से दबाना है। क्या ये बात समझ में आएगी सबको? हाथ कैसे रखोगे? हाथ ये सही है, ये गलत है, ठीक है? समझ में आया? अभी फटाफट डिस्क्राइब डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं? यस? ओके। तो क्या हुआ? पहले सबसे पहले मैंने क्या किया? डॉक्टर्स ABCD, डेंजर है मेरे लिए? नहीं है, तो मैं जाऊंगी पास में। फिर क्या करूंगी? ऐसे नहीं बैठना है। कैसे बैठना है? घुटनों पे स्टेबल, ठीक है? फिर क्या करना है? रिस्पॉन्स, ER, रिस्पॉन्स। हेलो हेलो, आर यू ओके? ठीक हो आप? कन्नड़ा में बोल सकते हो, तुलु में बोल सकते हो, जो भाषा में है वो बोलो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा या फिर नहीं आएगा? इसका आया? दोनों कंधे पे करना है ना, मैंने माइक पकड़ी है तो मैंने एक कंधे पे किया, दोनों कंधे पे करना है, ठीक है? हेलो हेलो, ठीक हो आप? ठीक हो? नो रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूँगी? जोर से चिल्लाना है, जोर से चिल्लाओगे तो लोग आएंगे, ठीक है? वो जब तक आ रहे हैं तब तक मैं क्या करूँगी? सर को झुकाकर मैं क्या करूँगी? गिनती करूँगी।
ये वाला जो बाहर का हिस्सा है वो पीछे जाना चाहिए, ये बाहर आना चाहिए। करो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिखाओ, हाँ, बाहर बाहर बाहर, हाँ, अभी मोड़ो, कोना मोड़ने की कोशिश करो, होगा नहीं होता ना। दिस इज योर पोजीशन, ये बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू गिव CPR। कैसे दूंगी? 5 सेंटीमीटर अंदर, क्या 2 इंच अंदर, पूरी तरह बाहर, अंदर पूरी तरह बाहर। ऐसे कौन से रेट पे मेरे साथ काउंट करना पड़ेगा सबको, ठीक है। स्टार्टिंग इन 3 2 1 1 2 3 4 5 काउंट 7 8 9 10 11 12 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 21 22 23 24 27, 28 29 30 1 2 3 4 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको काउंट करना है मेरे साथ। चलो, ऑल द पीपल सिटिंग इन द बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चाय नहीं दी क्या किसी ने? समझ में आ रही है बात? ये ऐसे चलते रहेगा, मैं अभी थक जाऊंगी, फिर आगे का सेशन ले नहीं पाऊंगी, फिर रोक रहे हो। नहीं तो इसको बचाना है तो क्या करना है? नो इंटरप्शन, ये चलते रहेगा। मैं थक जाऊंगी तो मेरे सामने किसी और को बैठना है और तुरंत शुरू करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? क्योंकि काफी लोगों को लगता है 30 कंप्रेशन दिया हो गया, उठ के बैठ जाएगा इंसान। कितने लोगों को लगता है कि CPR देने से इंसान उठ के बैठ जाएगा? नहीं, राइट? क्लियर? ट्रीटमेंट क्या है? शॉक देने वाली मशीन। क्लियर? पक्का? ओके, एनी डाउट सो फार? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी जब कोई आदमी अनकॉन्शियस गिरता है, उसका ब्रीथिंग चालू करता है। हाँ, उसका चेक करना है। CPR देने से पहले अगर कोई भी इंसान बेहोश हुआ, उसको देखना है, पहले रिस्पॉन्स देखो। ऐसा जरूरी नहीं कि वो बात करे आपके साथ, मुंह मिचकाएगा, कुछ मुंह बनाएगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगा, शायद आवाज नहीं आए, हाथ पैर हिलाएगा, सांसें चल रही होंगी। ऐसे में CPR दोगे या नहीं दोगे? वेरी गुड। CPR दोगे नहीं दोगे? नहीं देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। लास्ट का एक स्लाइड है मेरे पास, वो मैं दिखाती हूँ। इसको रिकवरी पोजीशन में डालना होता है, मतलब एक करवट पे लिटाना होता है ऐसे इंसान को। पर CPR हम शुरू नहीं करेंगे। और कोई डाउट्स? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, अब आता है ट्रीटमेंट का पार्ट। क्या आप लोग दे सकते हो? शॉक आप लोग दे सकते हो? नहीं। हाँ, दे सकते हो। यस, क्या दे सकते हो? हाँ, दे सकते हो? सही। कौन सा वाला? वो रजनीकांत हलवा वाला नहीं, यहाँ वो पोल में से निकाल के शॉट तक वाला नहीं, मशीन आती है AED, ठीक है। वो हलवा मूवी वाला नहीं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट मुझे हर बार अगले दिन भेजते हैं वीडियो, अरे ये वाला चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। देखा कितने लोगों ने देखा है वो पोल वाला? सर ने देखा, सर बता रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो AED क्या है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऑटोमेटेड का अर्थ, ऑटोमेटेड अंदर ही लो, ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह कपड़े डाल दिए, बटन खोल दिया, ऑन किया, सब खुद करेगा, बराबर। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, डिफिब्रिलेटर का मतलब शॉक, बाहर से शॉक देने वाली मशीन जो ऑटोमेटिक है, उसको क्या बोलोगे? AED, ठीक है। जोर से बोलो, क्या बोलोगे इसको? AED, क्या बोलोगे? वेरी गुड। 108 एम्बुलेंस में होती है, वो लाना है अगर कार्डियक अरेस्ट है तो, ठीक है। कितनी जल्दी? जितनी जल्दी हो सके, ओके। ये काम क्या करती है? ये बेसिकली हार्ट को शॉक देती है और इसको शुरू करने में मदद करती है। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ओके, अच्छा। AED मशीन
जैसे ही आप ऑन करते हो उसमें से आवाज आती है, जैसे एलेक्सा, गूगल, ओके, तो वो बात करेगी आपके साथ और आपको बोलेगी, जो भी बोलेगी आपको वो फॉलो करना है। अभी फिलहाल ये अंग्रेजी में है, बट लोकल लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा में भी आ जाए। एक जमाना होगा जब वो तुलु में बात करेंगे आपसे, पर मान लो अभी फिलहाल तमिल में बात कर रही है या जर्मन में बात कर रही है, तो आप इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि वो 4 स्टेप्स हैं। यूनिवर्सल, आप टिम्बक पे चले जाओ तो भी यही 5 स्टेप में 5 स्टेप, यही 5 स्टेप में काम करोगे। समझ में आ रही है बात? पक्का? ओके, सॉरी, ये 5 स्टेप में ही काम करना है, ठीक है? और AED पढ़ के नहीं आया आपको तो कैसे समझेगा आपको कि ये AED रखा है यहाँ पे? दिल बना होगा जिसके अंदर बिजली का निशान है, लाइटनिंग का साइन है, वो चार्जिंग वाला साइन आता है, वो वाला दिल के अंदर बना होता है, वो लव लेटर वाला नहीं, तीर वाला नहीं, ठीक है? दिल के अंदर बिजली का निशान अगर जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे AED लगा होगा। दादर स्टेशन पे लगा है, ओके, बांद्रा जाओगे सब जगह लगा है, मोस्ट ऑफ द मॉल्स के अंदर है, एयरपोर्ट जाओगे तो प्लीज ध्यान दो, हर 1 किलोमीटर पे AED लगी है, तो आसपास ध्यान रखो। आजकल AED काफी मिलती है सब जगह, ठीक है? तो इसको क्या करना है? ऑन करना है, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन बोलेगी आपको फॉलो करना है, सिंपल, ओके? अभी मैं ना AED चलाकर आपको दिखाऊंगी, ओके? तो बेसिकली आपको ये दिख रहा है, सॉरी, ये दिख रहा है AED ओपन करते ही या AED को ऑन करते ही वो बोलेगी, फर्स्ट स्टेप क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु शुरू करना कैसे है? पावर ऑन। सेकंड वो बोलेगी आपको कि सेकंड स्टेप इज अटैच पैड्स टू पेशेंट्स बेयर चेस्ट, मतलब अभी तो कपड़े नहीं उतारे हैं, वो अभी उतारने पड़ेंगे क्योंकि ये जो पैड्स हैं ये शरीर पे लगते हैं, ओके? एक राइट में जाता है, एक लेफ्ट में जाता है, इज दैट ओके? इसको चिपकाना है आपको, कपड़ों पे नहीं, स्किन के ऊपर, ठीक है? तो अभी इनके कपड़ों को निकाल के शरीर पे चिपकाना है। जैसे ही आप चिपकाओगे, कनेक्शन पूरा होगा, सर्किट पूरा होगा, तो मशीन क्या बोलेगी? एनालाइजिंग हार्ट रिदम, डू नॉट टच द विक्टिम, ओके? मतलब मैं इस इंसान की ECG पढ़ रही हूँ, इसको हाथ मत लगाओ। हाँ, हाथ लगा रहे थे क्या आप तक? हाँ, CPR दे रहे थे, मतलब ये पहले 2 जो स्टेप हैं CPR के चलते होंगे, मतलब कोई इंसान CPR दे रहा होगा, जो AED लेके आएगा, ये पैड्स CPR के चलते आपको लगाना है, ऐसा ओके? उसमें शॉक नहीं होगा तब तक, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है। CPR ये AED के पैड CPR के चलते लगाओगे। जैसे ही थर्ड स्टेप आएगा, मशीन बोलेगी डू नॉट टच, फिर पीछे आना है, फिर मशीन देखेगी शॉक देने की जरूरत है या नहीं है। 70% अडल्ट कार्डियक अरेस्ट, मतलब बड़ों में जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं 70% शॉकेबल होते हैं, मतलब शॉक देने की जरूरत पड़ती है। तो अगर 100 अडल्ट कार्डियक अरेस्ट हैं, 70 लोगों में शॉक देने को बोलेगी AED क्या बोलेगी? शॉक एडवाइज्ड चार्जिंग, वो ECG पढ़ के डिसाइड करेंगे। AED बहुत सेफ मशीन है, आप आपके दुश्मन को भी लगाओगे तो भी शॉक नहीं देगी जब तक वो कार्डियक अरेस्ट में नहीं है और उनका हार्ट का ECG उस तरीके का नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो वो पहले देखेगी कि कार्डियक अरेस्ट कौन सा है, शॉकेबल है या नहीं है। वो ECG पढ़ने के बाद क्या बोलेगी? शॉक एडवाइज्ड चार्जिंग, अभी ये पैड्स में शॉक इलेक्ट्रिसिटी का डोज जाएगा, इज दैट ओके? फिर मशीन बोलेगी डिलीवर शॉक, शॉक दो, पर क्या करना है उससे पहले? देखना है मैं क्लियर हूँ, मुझे तो नहीं लगेगा शॉक, आई एम क्लियर, यू आर क्लियर, मतलब आप भी पीछे हट दो। हर इंसान को पैर होता है, मैनिक्विन को नहीं है, तो पैर को भी कोई हाथ नहीं लगाया है, वो देखना है। आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर, सब पीछे हटो, फिर शॉक का बटन दबाना है, शॉक देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ, माइक लगा दूंगी तो आपको सुनाई देगा। इज दैट ओके? राइट, यहाँ का पंखा लग सकता है प्लीज, वॉइस आएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है?
ठीक है? ओके? मैं तो राइट में एक, लेफ्ट में एक, ठीक है? सीपीआर चल रहा है। सीपीआर रोक दो, पीछे हटो सब लोग, हाथ तक लगाओ। ओके, आई क्लियर, यू कोई हाथ नहीं लगाएगा, पैर को भी पीछे हटो सब लोग। ये दिख रहा है सबको, ऑरेंज फ्लैशिंग बटन, ये चार्जिंग होने के बाद ही आएगा, ठीक है? आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। फिर से सीपीआर शुरू करना है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 आप लोग काउंट कर रहे थे, ये रिदम है। इसके तरीके से काउंट करना है और इसी तरीके से सीपीआर देना है। समझ में आ रही है बात? वो एडी अगर है तो आपको काउंट भी देगी। हर 30 कंप्रेशन के बाद वो ये भी बोल के साथ देना है तो दे दो। मैंने आपको सिखाया नहीं क्योंकि अपना आज टाइम नहीं है, सांसें भी देनी होती है, इसीलिए 1 to 30 1 to 30 1 to 30। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, अब ये कब तक चलेगा? ये बीट कब तक चलेगा? 2 मिनट। ये 2 मिनट तक चलेगा क्योंकि एडी का साइकिल होता है, हर 2 मिनट में ईसीजी पड़ती है। 2 मिनट तक आपको क्या करना है? सीपीआर। 2 मिनट के बाद एडी क्या बोलेगी? स्टॉप, एनालाइजिंग हार्ट रिदम, फिर से ईसीजी पड़ेगी। शॉक देना है, नहीं देना है, देखेंगे। शॉक देने की जरूरत है, फिर से चार्जिंग, फिर से आपको पीछे हटना है, सबको हटाना है। ओके, अगर कॉर्ड फायर का है या मेटल का है तो कॉर्ड को भी हाथ में लगाना है, ठीक है? और फिर शॉक का बटन, मानुषी क्या बोलेगी? डिलीवर शॉक नाउ, प्रेस द फ्लैशिंग बटन नाउ। फिर दबाना है, शॉक दिया, उसके बाद क्या करोगे? तुरंत सीपीआर फिर से शुरू करना है। कब तक? 2 मिनट। फिर से मशीन 2 मिनट के बाद रोकेगी, फिर से पढ़ेगी ईसीजी। शॉक देना है, नहीं देना है। अगर मशीन ने बोला शॉक नहीं देना है तो क्या करना है? अगर होश नहीं आया है, सांसें नहीं चल रही हैं, मतलब होश नहीं आया है, रिस्पॉन्स नहीं है, सांसें नहीं चल रही है, फिर से सीपीआर शुरू करो। होश आ गया है तो सीपीआर, फैंटास्टिक। समझ में आया सबको? ये 2 मिनट तक चलेगा। और कुछ डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई क्वेश्चन सो फार? 2 मिनट हुआ। Do not touch the patient. No shock advised. No shock advised. क्या करोगे? If needed, begin CPR. If needed, मतलब होश नहीं आया, सीपीआर शुरू करो। कब तक करेंगे? समझ में आया सबको? कौन इस्तेमाल कर सकता है इसको? सिर्फ डॉक्टर्स? कौन इस्तेमाल कर सकता है? आप लोग कर सकते हो। ट्रेनिंग मिला तो डेफिनेटली कर सकते हो, राइट? तो अगर एडी मिला तो पीछे नहीं हटोगे अभी कभी? श्योर? कार्डियक अरेस्ट हुआ तो मदद करोगे लोगों की? फैंटास्टिक, प्रॉमिस? और एक कार्डियक अरेस्ट में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? वो उन लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी करोगे? प्रॉमिस? लाइफ सेविंग मूवमेंट अब आपका, आपको कैसे आगे लेके जाना है ये आपके हाथ में है। ओके, नाम रोशन करना, ठीक है? अभी कमिंग बैक टू दिस, बोलो क्या सही है क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ यहाँ पे? फटाफट। थैंक यू, वेरी नाइस। और एनीबडी एल्स? क्या गलत हुआ यहाँ पे? सीपीआर की जरूरत है या नहीं है? हाँ तो बोलो। सो वही गलत है ना, इसको प्राइज दिया, टाइम्स का ने प्राइज दिया, टाइम्स का ने वायरल हुआ था ये वीडियो, मेरे स्टूडेंट से भेजा था, मैंने देखो क्या बकवास चल रही है। ओके, सीपीआर देने की जरूरत नहीं थी। क्या देने की जरूरत थी? रिकवरी पोजीशन। सर ने पूछा ना अभी, अगर रिस्पॉन्स है, सांसें चल रही हैं, बेहोश इंसान, क्या करोगे? रिकवरी पोजीशन। जिस साइड, यहाँ पर हम वास्तु फेंग शुई नहीं देखते हैं, जिस साइड पे जाओ उस साइड पे उसको करवट पे डालो, ठीक है? ओके, तो जिस साइड पे जाओगे उस साइड का हाथ कोने में बेंड होगा, फोल्ड। ऑपोजिट हाथ क्या करोगे? हथेली कान को कवर करोगे, कोने में
बेंड होगा, एल्बो में बेंड होगा, ऑपोजिट पैर घुटने में बेंड होगा, एल्बो और घुटना पकड़ के टर्न आपके तरफ। समझ में आ रहा है? पक्का? दिस इज द फाइनल पोजीशन। गर्दन देख रहे हो, खुला है और ये पीछे लुढ़क के नहीं जाए इंसान, इसलिए क्या करना है, घुटने को 90 डिग्रीज में लॉक करना है ताकि वो पीछे से लुढ़क नहीं जाए। क्यों देना है ये पोजीशन? आराम से पीठ पे लेटा हुआ था इंसान, सांस चल रही थी उसकी, कुछ हुआ नहीं है, क्या जरूरत है क्या कुछ करने की? ये सब करने की जरूरत है? क्यों करना है? हमने शुरुआत में बात की थी ना, एस्पिरेशन, उल्टी अगर हो गई तो यहाँ कहाँ जाएगी ये उल्टी? सांस की नली में। यहाँ पे कहाँ जाएगी? यहाँ कहाँ जाएगी? अगर उल्टी हुई इस इंसान को, कहाँ जाएगी? जमीन पे। क्या इसकी जान बचाओगे आप? यस। तो अगर आपको ऐसा बेहोश इंसान मिलता है जिसकी सांसें चल रही हैं, उसको कौन सा पोजीशन में डालोगे? रिकवरी पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई? Yes? Any doubts, any questions? Any doubts, any questions? कुछ भी, see, आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, कुछ भी सिली क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लो। ऐसे मन में डाउट लेके मत जाओ, और हो सकता है आपके मन में जो डाउट आया है वो किसी और के मन में भी आया हो। आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, पुण्य का काम है, तो पूछ लो। Any question? Yes. आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, कार्डियक अरेस्ट है तो मरेगा वो इंसान। आप जैसे सीपीआर रोकोगे वो इंसान मरेगा। आपको कैजुअलिटी इमरजेंसी रूम में लेके जाना ही है, क्योंकि फाइनल ट्रीटमेंट वहीं मिलेगी। आपने एईडी के साथ हार्ट को शुरू तो कर दिया, बराबर, पर कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों? उसके पीछे का जो भी प्रॉब्लम था वो तो डॉक्टर्स ही ट्रीट करेंगे ना। आपने सिर्फ हार्ट को शुरू किया है, बराबर। सपोज अगर हार्ट शुरू हो गया, आपने एडी का शॉक दिया, हार्ट शुरू हो गया, तो फिर आपने उसको रिकवरी पोजीशन में डाला। सी एडी के ना पार्ट लगे हुए हैं अभी, इंसान होश में आने के बाद भी एडी के पार्ट निकाले नहीं। हाँ, एवरीबडी, सब लोग को ध्यान है। सर पूछ रहे हैं इसके बाद क्या? इसके बाद अस्पताल लेके ही जाना है, इमरजेंसी कैजुअलिटी जहाँ पे भी है। ओके, क्यों लेके जाना है? क्योंकि इसके अंदरूनी कारण क्या था ना, कार्डियक अरेस्ट, उसको हमने ट्रीटमेंट अभी तक नहीं दिया है। जो हार्ट बंद हुआ था उसको सिर्फ शुरू किया है अभी, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेके ही जाना है, डॉक्टर ही ट्रीटमेंट देंगे फाइनल। यहाँ पे अपने सिर्फ हार्ट को शुरू किया शॉक पे। इज दैट ओके? मैडम वो रिकवरी पोजीशन है। हाँ, राइट लैटरल। नो, आई सेड ना, वास्तु फेंग शुई नहीं देखना है, कोई भी साइड पे आप कर सकते हो। प्रेगनेंसी है तो लेफ्ट साइड ज्यादा इम्पोर्टेंट बोलते हैं, पर इमरजेंसी में आपको ध्यान नहीं रहा, गलती से आपने राइट किया, चलेगा कहाँ? चलेगा। पर अगर याद रहे तो प्रेगनेंसी, अगर पेट दिख रहा है माँ का, तो प्रेफरेबली लेफ्ट साइड में उनका करवट देना, मतलब ये जो करवट देनी है वो लेफ्ट में दीजिए, अगर पॉसिबल होता है, याद रहता है तो। पर हम लोग जो फर्स्ट एड सिखाते हैं जनरल पब्लिक के लिए सिखाते हैं, तो वो जो डॉक्टरों के लिए हम एम्फेसाइज करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, वो आप लोग के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो वास्तु फेंग शुई देंगे, राइट, लेफ्ट, सेंटर, आगे पीछे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, जिस साइड में आप चलाओगे उस साइड में करवट दे दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? जब हम सीपीआर देते हैं तो वो कभी वो रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स करते हैं, फिर कभी सीपीआर बंद करने को बोलते हैं। यस। कितना टाइम तो बंद कर देंगे, कितना टाइम? सर का क्वेश्चन है कि सीपीआर देते देते अगर इंसान रिस्पॉन्स देना शुरू करे तो सीपीआर आगे देना है या बंद करना है? आपको क्या लगता है सबको? बंद करेंगे। अगर रिस्पॉन्स है तो करो, तो इंसान क्या करेगा? शायद छटपटाएगा, उठेगा, वो दर्द की वजह से शायद रिस्पॉन्स देगा। तो अगर रिस्पॉन्स वो देगा मतलब कि शायद कार्डियक अरेस्ट था ही नहीं, तो क्या करेंगे हम? सीपीआर देना रोक देंगे। तो 10 मिनट के बाद अगर वो फिर से अनरिस्पॉन्सिव हुआ, सांसें लेना रोक दिया, तो सीपीआर दोगे या नहीं दोगे? देंगे। ओके, क्योंकि शायद आपका कार्डियक अरेस्ट गया। ओके, सी हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमको क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हमको जानने की जरूरत नहीं है। हमको क्या पता है सीपीआर कब देना है, कब नहीं देना है। सांसें चल रही है, रिस्पॉन्स है, नो सीपीआर। सांसें नहीं चल रही है, नो रिस्पॉन्स, स्टार्ट सीपीआर। सिंपल। सीपीआर आप लोग चालू
करते हैं आपको रेस्पॉन्स देते हैं तो वापस कार्डियोग्राफ में जाएगा क्या? जा सकता है ना, क्योंकि क्यों हुआ? अगर वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं हाँ, तो कितना देर तक हम लोग सीकर नहीं दे रहे? रिस्पॉन्स जब तक दे रहा है तब तक नो सीपीआर। जैसे रिस्पॉन्स बंद हुआ, सांसें बंद हुई, स्टार्ट सीपीआर। इसीलिए हम एडी के पार्ट्स निकालने नहीं बोलते हैं। एक बार आपने एडी के पार्ट लगा दिया, रिस्पॉन्स आया, इसको आया और ऐसे ही पोजीशन दिया ना, तो रिस्पॉन्स आने के बाद हम ये पोजीशन दे देंगे। पर हर 5-10 मिनट में चेक करेंगे, सांसें चल रही है, नहीं चल रही है, चल रही है, नहीं चल रही, देखोगे हर 10 मिनट। मान लो 30 मिनट, 30 मिनट के बाद वो फिर से सांसें लेना उसने बंद कर दिया, रिस्पॉन्स बंद हो गया, तो सीपीआर शुरू करोगे नहीं करोगे? करोगे। समझ में आई बात? तो एडी भी तब तक काम करेगा, हर 2 मिनट में एडी देखेगा और बोलेगा, क्या बोलेगा वो? अगर पेशेंट का रिस्पॉन्स आ गया है, उसका ईसीजी मतलब अभी नॉर्मल हो गया, तो एडी शॉक देगा, एडी क्या बोलेगा? नो शॉक एडवाइज्ड, इफ नीडेड स्टार्ट सीपीआर। तो रिस्पॉन्स होगा तो ऑब्वियसली आप सीपीआर नहीं दोगे, ओके? तो रिस्पॉन्स आया, सीपीआर मत दो, रिस्पॉन्स नहीं है, सांसें नहीं चल रही, सीपीआर शुरू करो, सिंपल। और दूसरा एक शॉट में अगर वो रिवाइव नहीं हुआ तो सेकंड शॉट दे सकते हो? आप 10-15 शॉट भी दे सकते हो, 50 शॉट भी दे सकते हो, जब तक मशीन बोल रही है शॉट दे सकते हो, तब तक उस इंसान की जान बचना संभव है। जब तक शॉकेबल रिदम है तब तक वो इंसान का दिल काम कर सकता है, वो जिंदा हो सकता है। इट इज अ वेरी गुड साइन। जब तक मशीन बोल रही है शॉकेबल रिदम, शॉक देना है, मान लो इसका बहुत अच्छा चांस है कि ये इंसान बचे। वो शॉक दिया आपने बट वो रेस्पॉन्स नहीं हुआ, तो कैन यू बी सेकंड शॉट? बट सर आप 2 मिनट का सीपीआर करोगे ना, फिर सीपीआर तो देगा तो हर 2 मिनट में मशीन ईसीजी चेक करेगी। लेकिन वो सेकंड शॉट के लिए वो चेक करेगा। हाँ, तो वो बोलेगा शॉक दो, तो शॉक दे दो। जब तक मशीन बोल रहा है शॉक देना है, तब तक आपका चांस है उस इंसान को बचाने का, ओके? नहीं सर आप सो सांसें जब तक चल रही हैं, सो गैस्पिंग मतलब जब तक सांस रेगुलर चल रही, इसीलिए 10 सेकंड तक देखना है ना। सी कुछ होते हैं अबनॉर्मल ब्रेथ, आखिरी कुछ सांसें होती हैं जिसको एबोनल गैस्प्स कहते हैं हम लोग, एबोनल गैस्प्स मतलब आखिरी कुछ सांसें होती है वो खर्राटों की तरह आती हैं, पेट से आती है, छाती से नहीं। इसलिए हमने आपको क्या बोला, कहाँ देखना है? छाती, ओके? ये खर्राटों में जैसे जो सांसें होती हैं वो अबनॉर्मल होती हैं और फिर रुक जाएगा, फिर आधे 1 मिनट के बाद इरेगुलर होंगी। इसलिए मैंने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया था, कैसे रेगुलर चलता है ना उसका, हम लोग भी वैसे सांस लेते हैं ना, या ऐसे लेते हैं सांस, जैसे मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया। अगर ऐसी सांसें चल रही हैं और रिस्पॉन्स नहीं है, प्लीज नॉट सीपीआर। इसको हम एबोनल गैस कहते हैं। पर अगर रेगुलर चल रही है सांसें तो सीपीआर मत शुरू कीजिए, ओके? क्लियर? केस ऑफ ड्राउनिंग हाँ। सो केस ऑफ ड्राउनिंग में 2 चीज़ें हैं, एक तो बाहर निकालोगे, एक तो एडी के साथ है, क्योंकि पानी होगा तो एडी लगाना है नहीं लगाना है। छाती को पोंछ लो और फिर एडी लगाओ, क्योंकि पानी है तो इलेक्ट्रिक शॉक जाएगा नहीं दिल तक, ओके? पर ड्राउनिंग में भी सीपीआर देना है नहीं देना है? यंगस्टर्स, ड्राउनिंग के इंसान को बाहर निकाला तो क्या चेक करोगे पहले? वेरी गुड, रिस्पॉन्स नहीं है, फिर क्या करोगे? 104 शाउट शाउट शाउट, रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे शाउट, हेल्प को बुलाओगे, फिर क्या चेक करोगे? सांसें चल रही है नहीं चल रही है, क्या करोगे? स्टार्ट सीपीआर। वो छिछोरे में जैसे पेट मत दबाना, छिछोरे मूवी में मैंने नहीं देखी है, जब मेरे बच्चे बोलते हैं पेट नहीं दबाना, क्योंकि पेट दबाओगे तो क्या होगा? वो पानी कहाँ जाएगा? अगर अभी तक फेफड़ों में नहीं गया है तो डेफिनेटली आपके पेट दबाने की वजह से फेफड़ों में ही जाएगा। तो अभी तक जो मरा नहीं था तो क्लियर? तो पेट को नहीं दबाना है। सीपीआर कहाँ देते हैं? तो सांसें नहीं चल रही, रिस्पॉन्स नहीं है, ड्राउनिंग करते हो, चोकिंग करते हो, कोई भी हो, सीपीआर कहाँ देंगे? छाती, पेट को ड्राउनिंग करते हुए नहीं दबाएंगे, मूवी सब झूठे हैं, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? मेडिकली अगर सीपीआर देना है तो एज पर माई नॉलेज 45 मिनट्स तक मेडिको लीगली ट्राई करना है,
अगर 45 मिनट के बाद भी अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वी कैन डिक्लेयर कर सो दिस 45 मिनट रूल हॉस्पिटल के अंदर है, बाहर देयर इज नो सीलिंग। अगर आप हाई क्वालिटी सीपीआर दे तो मैं हाई क्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी अगर सीपीआर दे रहे हो तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद हार्ट शुरू किया जा सकता है। अगर आप हाई क्वालिटी नहीं दे रहे हो तो 20 मिनट के बाद कोई चांस नहीं है इंसान जिंदा होने का। ओके, तो अगर आप पोअर क्वालिटी सीपीआर दे रहे हो तो 40 मिनट नहीं, 20 मिनट खत्म, गेम ओवर। पर अगर हाई क्वालिटी सीपीआर देते हो ट्रेनिंग लेकर तो आप 1 घंटा, 2 घंटे, श्रेयस तलवाड़े को 1.5 घंटा लगा था हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, फिर भी बचा। दैट रूल इज फॉर इनसाइड हॉस्पिटल क्योंकि वी आर डूइंग ACLS, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जहाँ पे वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ ड्रग्स, हम इन्वेस्टिगेशंस है, ब्लड वर्क है, तो दैट रूल इज जनरली फॉर हॉस्पिटल, इनसाइड हॉस्पिटल। ठीक है, आउटसाइड हॉस्पिटल आप लोग जो करोगे उसके लिए कोई अपर सीलिंग नहीं है। ओके, तो सीपीआर कब रोकना है? रिस्पॉन्स आया, सीपीआर रोक दो। एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एम्बुलेंस आई आपके पास 108 जिसके अंदर ट्रेन लोग हैं, तो उनको हैंड ओवर करो, आपका काम खत्म। अगर आप किसी पहाड़ों पे गए हो जहाँ पे AED नहीं मिलेगी, ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट एड कितनी देर दोगे? तो हाई क्वालिटी सीपीआर 20 से 40 मिनट दो, इंसान रिस्पॉन्स देता है, ग्रेट, नहीं तो फिर आप भी थकोगे, आप भी फंस जाओगे नहीं, वहाँ पे आप अबैंडन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ इन्हीं मतलब इंसान मर गया है और इंसान रिस्पॉन्सिव है, मतलब जिंदा है, इन्हीं 2 सिचुएशन में सीपीआर रखना है, बाकी सब सिचुएशन में सीपीआर कंटिन्यूस। या मान लो हमने डेंजर की बात की थी, आपने चेक किया था डेंजर, सीपीआर शुरू किया, फिर अब बिल्डिंग गिर रही है या आग लगी है, आपकी जान को खतरा है, सीपीआर फिर भी कंटिन्यू करोगे? वो इंसान ऐसे भी मरने वाला है, आप भी मर जाओगे, तो डेंजरस सिचुएशन में आप सीपीआर कंटिन्यू नहीं करोगे। पल्स थी, हम जो रोज में एनेस्थेटिस्ट हूँ एंड सर, दोनों सर भी वेरी ऑब्वियसली वेरी, हम लोग का लाइवलीहुड मतलब हमारी सैलरी पल्स के ऊपर होती है, मतलब हम लोग मॉनिटर करते हैं पल्स, हमारे लिए इट इज लाइवलीहुड, ब्रेड एंड बटर। पर कार्डियक अरेस्ट में हमको भी पल्स मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो जिस इंसान को रोज सुबह शाम रात पल्स चेक करने की आदत है उसको डिफिकल्टी होगी, तो जिन लोगों को आदत ही नहीं है वो लोग दे विल बी वेस्टिंग टाइम लुकिंग फॉर पल्स। तो हम पल्स नहीं सिखाते लेबर्स, कॉमन मैन इज नॉट सपोज टू चेक फॉर पल्स, क्योंकि सीपीआर जितनी जल्दी आप शुरू करो उतना ज़्यादा चांस मिलेगा इस इंसान को, क्योंकि आप 3 से 4 मिनट के अंदर अगर सीपीआर शुरू कर सकते हो तो दिस पर्सन गेट्स 80 to 90% चांस कि ये जिंदा हो जाए। पर हम पल्स ढूंढने में टाइम पास करेंगे तो और चांस कम होता जाएगा। सो नो पल्स फॉर लेबर्स है, पर अगर डॉक्टर्स को आदत है पल्स देखने की, नर्सेज को आदत है, तो उनकी बैच को हम पल्स देखना सिखाते हैं, बट नॉट फॉर कॉमन पीपल। इसमें और एक बात हो सकती है, सीपीआर देने के टाइम सीपीआर हम लोग जब हम सीपीआर देते हैं तो कभी कभी ज़्यादा फोर्स करने से भी हिप फ्रैक्चर का चांस हो सकता है। गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली रिब्स क्या है? हड्डी है, राइट? तो रिब टूट सकता है क्या? अगर आपने सही हाथ रखा है, इसीलिए ट्रेनिंग, दैट इज व्हाई आई विल कम बैक टू ट्रेनिंग। ये YouTube पे देख के आप सीख सकते हो, ये YouTube पे देख के सीख सकते हो कितना 5 इंच होता है, 5 सेंटीमीटर कितना होता है, 2 इंच कितना होता है, वो रिदम ये आप YouTube पे देख के सीख सकते हो, या घर पे तकिया रख के सीख सकते हो। कहाँ पे सीखना पड़ेगा आपको? ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट में जहाँ पे पुतले हमने लाए हैं उसी पे सीखना पड़ेगा, राइट? तो ये हमने वहाँ पे एक स्टैंडी लगाई है, उसके ऊपर सारे कोर्सेज लिखे हैं, वो 4 से 8 घंटों के कोर्सेज है, जहाँ पे आप आते हो, हम 10 पुतले लेके आते हो, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो। ओके, तो हम क्या सिखाते हैं आपको, क्या नहीं करना है, राइट? तो हम ये सिखाते हैं हाथ कहाँ रखना है, सही जगह, सही कंप्रेशन, सही डेप्थ, सही रेट। ये सब आप नहीं करोगे तो रिब्केज टूटेगा, हाँ, चलेगा नहीं। पर अगर आपने सही हाथ रखा है, सही ट्रेनिंग ली है, सही कंप्रेशन दिया है, सब कुछ सही किया, फिर भी रिब्केज टूट सकती है क्या? ओल्ड एज में टूट सकती है, ऑस्टियोपोरोटिक है, टूट सकता है। पर क्या ये जुड़ सकता है? फ्रैक्चर्स हील होते हैं सर, फ्रैक्चर्स हील होते हैं, कब होंगे? जब इंसान जिंदा होगा तो द पर्सन विल थैंक यू फॉर ब्रेकिंग हिज रिब्स, तो शुक्रिया करेगा, धन्यवाद आपने मेरा रिब तोड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे जिंदा किया। ओके, पर सही करोगे तो दिस रूल इज रिब तोड़ो बट सही करके तोड़ो, पर उस इंसान को जिंदा करो। इज दैट ओके? या
इंश्योरेंस, राइट? तो उनको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी? मैं बहुत मानती हूँ कि स्वार्थी होना फैलाने की जिम्मेदारी और आपकी। या आप चाहते हो कि सब तक पहुँचे? तो एक रिक्वेस्ट, सबके पास स्मार्टफोन्स है, गूगल लेंस है, प्लीज स्कैन दिस एंड गिव अस अ रिव्यू, क्योंकि आपके रिव्यूज पढ़ के लोग हमको अप्रोच करेंगे और हम उनके पास सिखाने जाएंगे। बिकॉज मुझे यही बोला जाता है कि आप काम करते हो, किसी को पता नहीं है, इतना अच्छा सेशन होता है, किसी को पता नहीं है। प्लीज स्कैन दिस, गूगल लेंस इस्तेमाल करें, गो टू द पेज एंड प्लीज, एंड सिर्फ स्टार रेटिंग नहीं है, कुछ लिखना, क्योंकि वो स्टार रेटिंग अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम फ्रॉड है, मतलब हमको लगता है कि हमने फ्रॉड किया है। तो प्लीज कुछ 2-3 सेंटेंसेस आप तुम लोग में भी लिख सकते हो, तेरा में भी लिख सकते हो, ओके? वो गूगल ट्रांसलेट कर लेगा। आप whichever language you are comfortable, उस लैंग्वेज में प्लीज लिखिए। really will mean a lot to our work. किसी को मदद चाहिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आपको स्कैन करने का मदद चाहिए, एक रिव्यू से हमारा एक्चुअली रीच बढ़ेगा उतने लोगों की जान बचाने के लिए। सो हमारा विजन है हर घर में एक लाइफ सेवर बने। हम इसके लिए काम कर रहे हैं दिन रात पिछले 7 साल से, तो ड्यूटी है। सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड। स्टडी मतलब 1-2 मार्च से अप्रैल में ना इंटरनेशनल स्टडी, इंडिया में नहीं है, इंटरनेशनल स्टडी है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि 33% लेडीज को फर्स्ट एड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लेडीज हैं। तो मेरा मानना है कि ये 33% कोटा उनको दे दो, फर्स्ट एड पे भी दे दो उनको फर्स्ट एड। हमारी आबादी कितनी है? चाइना से भी ज़्यादा है, बराबर? तो लोगों को जमा करो, राउंड सर्कल बनाओ और उन सबको पीठ को पीठ लगा के खड़ा करो। तो अंदर प्राइवेसी क्रिएट हो गई, अंदर का सर्कल, उनका भी पीठ मतलब उनके चेहरे और आंखें बाहर की तरफ है, बराबर? तो उन सबको पीठ से पीठ खड़े करके ना एक प्राइवेसी बनाना, ओके? लेडीज के भी कपड़े उतारो, एडी पैंट लगाओ, एडी पैंट लगाने के बाद ढक दो वापस, कर सकते हैं। और सिर्फ लेडीज को क्यों, जेंट्स को नहीं कवर करना है, उनको खुला छोड़ देंगे चलेगा? नो पार्शियलिटी, उनको भी कवर करो, नो पार्शियलिटी। एक बार एडी पैंट लगा दे तो दोनों को कवर करो, ओके? और जेंट्स को भी ऐसे घेराव करके प्राइवेसी तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। डूएबल वर्क्स, यस? तो आबादी है अपनी इतनी, तो उनका इस्तेमाल करो। ह्यूमन रिसोर्स फ्री में अवेलेबल है इंडिया में, प्लीज यूज, प्लीज कॉल फॉर हेल्प। इसीलिए शाउट फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने लोग आएंगे उनकी मदद तो मेक इट पॉसिबल। और इंडिया में अभी भी साड़ियाँ पहनी जाती हैं, करेक्ट? तो साड़ी के पल्लू के साथ कवर करके सीकर दिया जा सकता है, हाँ या ना? करेक्ट? सो दैट इज पॉसिबल। तो लेडीज के लिए भी हमारे पास सब नुस्खे हैं। आप जो भी क्वेश्चन पूछो, मेरे पास नुस्खे हैं। हमने पिछले 10 साल मैंने एनेस्थीसिया करियर मेरा छोड़कर मैं आई डिवोटेड माय फुल टाइम टू दिस फॉर द लास्ट 7-8 years। अभी आई जॉइन इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट, मैं वहाँ पे फुल टाइम हूँ। बट इसके लिए मैंने मेरे 7 से 8 साल आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ टू दिस, कि एक हर घर में एक लाइफ सेवर हो जो किसी की जान बचाए हॉस्पिटल के बाहर। तो द लाइफ सेविंग मूवमेंट इज नाउ योर्स। एनी अदर क्वेश्चंस? मैं तो ही फिनिश कर रही हूँ। ओके सर, एनीथिंग? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। हाय, या ना बोले हो? किती करी